This teeth is the teeth of the pinion, and this is the teeth of the gear. O1 is one center, O2 is another center, T is the pitch point, NN is the normal. ठीक है? अब मान लीजिए मैं इस O1 को C से ज्वाइन कर दूं. I am joining the O1 with C. C point is the common point, है ना? आज section भी है ना? C is the common point between teeth. So C is the common point between the teeth. और C point पे हमने एक normal draw किया, that is NN. O1P PC pitch circle radius and O2P is also the pitch circle radius. ये भी pitch circle radius है of the gear 1 और इसको बोलते हैं gear 2. अब हम 1 और 2 से चलते हैं. ऊपर gear 1 है, नीचे gear 2. O1 is the center of gear 1, O2 is the center of gear 2. Now हमने O1C को join कर दिया. अब ये बताओ C point की velocity किस डायरेक्शन में? C is the common point. तो C point की velocity किस डायरेक्शन? क्या NN की डायरेक्शन में होगी? आपने ये पढ़ा है ना, V equal to R, तो R के परपेंडिकुलर होती है. तो इस पॉइंट के लिए रेडियस हो गई O1C. For the point C, the radius is O1C. Then you have to draw the perpendicular of O1C. So O1C का मैंने एक perpendicular draw कर दिया. तो C point से ये perpendicular मैंने draw कर दिया. तो ये velocity जो है, ये C point की velocity है as per the gear 1. Gear 1 के हिसाब से. ठीक है? अब हम gear 2 के हिसाब से देखें. तो gear 2 के लिए C को O2 से मिलाओ. अब O2C का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर वो वेलोसिटी होनी चाहिए एज पर दी गियर 2. तो गियर 1 के हिसाब से तो ये वेलोसिटी है, जिसको मैंने पॉइंट दे दिया CA. तो CA क्या है? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C एज पर गियर 1. एज पर गियर, है ना? वेरिएबल्स को लिखने से चीज समझ में आने लगती है ना? So C is the velocity as per gear 1. C point की velocity. Now O2C is the radius as per gear 2. तो O2C का एक perpendicular draw किया. ठीक है? O2C का हमने क्या draw कर दिया? एक perpendicular draw कर दिया. So let this point is B. So CB is the velocity as per gear 2. So CB is the velocity of point C again. Point तो कॉमन है एज पर गियर 2. एज पर गियर 2. ठीक है? नाउ बाय द रूल V equal to R omega we can write, हम क्या लिख सकते हैं? CA is the velocity, V equal to R omega, R is the radius, that is O1C, into omega 1. And we are considering that it is rotating with omega 1 velocity and it is rotating with omega 2 velocity. दोनों रोटेट हो रहे हैं. gear 1 की velocity omega 1 angular velocity, and omega 1 को भी आप डिफाइन कर दीजिए. omega 1 is angular velocity of gear 1. And omega 2 is the angular velocity of gear 2. बहुत सारे पैरामीटर हैं of gear 2. omega 1, omega 2. तो ये मैंने कुछ नहीं लिखा, V equal to R omega किया है. CA जो है velocity है, V velocity, radius this one, omega angular velocity equal to R omega. So let this is equation number 1. This is equation number 1. CA velocity है ना? Yes, CA is the velocity perpendicular to radius O1C. This is the velocity. This is a linear velocity. CA is the linear velocity. Omega is the angular velocity. है ना? तो दोनों में relation V equal to R omega है. Now I can write similar way CB. तो
So CV equal to yes O2C omega 2. Let this is the equation number 2. लिख सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो तो you will get CA by CB equal to O1C by O2C omega 1 by omega 2. So you have omega 1 by omega 2 equal to CA by CB into O2C by O1. ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ओमेगा 1 by ओमेगा 2 निकाल लिया। ओमेगा 1 by ओमेगा 2 क्या है? इट इज द वेलोसिटी रेशियो। इट इज द वेलोसिटी रेशियो। तो गियर टर्मिनोलॉजी में वेलोसिटी रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि ये वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, पावर विल बी ट्रांसफर्ड स्मूथली। इफ इट इज नॉट कांस्टेंट, समटाइम्स इट इज 3, समटाइम्स इट इज 4, तो पावर क्या होगी? डिसरप्ट होगी बीच बीच में, है ना। इट विल नॉट बी स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पावर। ठीक है, तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल एंड साइक्लॉइड प्रोफाइल दोनों ही फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो मिलता है, इसका मतलब पावर स्मूथली ट्रांसफर। दैट्स व्हाई दीस टू प्रोफाइल्स आर मोर जनरलाइज्ड, मोर यूज्ड। ठीक है, तो अभी हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को कैलकुलेट कर लिया और हम ये प्रूफ करेंगे कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग का यदि हम स्टेटमेंट कहें तो स्टेटमेंट क्या है? कॉमन नॉर्मल। ठीक है, एनएन क्या है? कॉमन नॉर्मल। कहां पर है? कॉमन पॉइंट पर है। तो कॉमन नॉर्मल एट द टूथ प्रोफाइल will always pass through the pitch point. ये P क्या है? pitch point. तो ये NN pitch point से पास होना चाहिए for constant omega 1 by omega 2. For the constant value, इसको लिख लीजिए। कॉमन नॉर्मल कोई भी पूछता है ना फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग क्या है, तो ये स्टेटमेंट बोलना है, कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल will always pass through the pitch point, और ब्रैकेट में डाल दो फिक्स्ड पॉइंट। ये पिच पॉइंट फिक्स्ड होता है ना, ब्रैकेट में क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट for a constant velocity ratio, constant velocity। ठीक है, अब देखो, यदि मैं P पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, P पॉइंट से मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। तो एक तरह से ये क्या है? टेंजेंट है, ये टेंजेंट लाइन है पिच पॉइंट से। सो इस टेंजेंट लाइन और कॉमन नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? प्रेशर एंगल। सो दिस इज अल्फा। देखो एक बार फिर से समझो, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ कर दी है? एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। मान लो कि ऊपर एक ये वाला गियर है, नीचे एक ये वाला गियर है, ये पॉइंट P है, तो P से जो लाइन जा रही है वो कॉमन टेंजेंट है टू बोथ द गियर्स। ठीक है, एट पॉइंट P। तो दिस कॉमन टेंजेंट एंड द कॉमन नॉर्मल, द एंगल बिटवीन देम इज द प्रेशर एंगल अल्फा। सो दिस इज अल्फा। इफ दिस इज अल्फा, तो यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? परपेंडिकुलर। लेट दिस पॉइंट इज G, this point is G. So if this angle is alpha, then this whole angle will also alpha, by geometry। ठीक है ना, किन्हीं भी दो लाइंस के बीच एंगल अल्फा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल अल्फा ही होगा। ये तो कॉमन है, किन्हीं दो लाइनों में एंगल अल्फा है तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस में एंगल अल्फा ही होगा। सो आप देख लीजिए परपेंडिकुलर है,
इस हॉरिजॉन्टल लाइन का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन है और इस कॉमन नॉर्मल का परपेंडिकुलर ये OG है। सो दिस होल एंगल इज प्रेशर एंगल उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो एक ट्रायंगल ले लो O1CG, O1CG, थोड़ी मैथमेटिक्स है, मतलब O1CG एक ट्रायंगल हमने ले लिया O1CG और एक ट्रायंगल हमने ले लिया CA और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं दिस इज D। सो CAD ये हमने दो ट्रायंगल ले लिया। अभी मैं सुनता हूं आपकी बात है ना। O1CG this is the first triangle and CAD is the second triangle। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी CA थी पहले गियर के हिसाब से, दूसरे गियर के हिसाब से CV थी। तो CA का प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या है CD और CV का प्रोजेक्शन नॉर्मल पे क्या है वो भी CD। तो ये प्रोजेक्शन बराबर होना चाहिए बिकॉज इट इज अ कॉमन पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये B पॉइंट तो आपने आगे सरका दिया और फिर यहां से आप परपेंडिकुलर डाला तो प्रोजेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, सो फॉर द स्मूथ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कॉमन पॉइंट की वेलोसिटी है, देन द प्रोजेक्शन मस्ट बी इक्वल। दोनों गियर के हिसाब से नॉर्मल पे जो प्रोजेक्शन है वो इक्वल होना चाहिए। तो हमने इक्वल ही रखा है। CA का प्रोजेक्शन भी CD है और CD का प्रोजेक्शन भी CD दोनों। अब आप देखो ये जो दो ट्रायंगल मैंने आपसे कहे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर। सिमिलर का मतलब ऑल द एंगल्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू ऑल द एंगल्स ऑफ सेकंड। कोई भी दो एंगल होने से इक्वल होने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर। वो तो आप प्रूफ कर सकते हैं ज्योमेट्री से। तो सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं प्रोपोर्शनल। तो यू कैन राइट O1C डिवाइडेड बाय O1G इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CD। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है प्रोपोर्शनल है ना। तो हम ये लिख सकते हैं। तो देखो ये CA बाय CD जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ CA कुछ आ रहा है ना, CA बाय CB हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी CA आया है, CB भी आना चाहिए, आएगा वो बाद में। तो CA बाय CD की वैल्यू इसके इक्वल हो गई। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब देखिए अब एक ये यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला था जो किस पॉइंट पर टच कर रहा था G पर। अब यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला दूसरे गियर से जो कि पॉइंट F है। ठीक है, अब नीचे से देखो O2CF एक ट्रायंगल O2CF is similar to CBD। यहां पे भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है CAD पहले गियर के हिसाब से और दूसरा बन रहा है CBD दूसरे गियर के हिसाब से। तो ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। सिमिलर ऐसे हैं कि एंगल देख लो, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है वो 90 क्यों है बिकॉज़ इट इज ए प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन तो 90 नहीं होता है। तो 90 एक एंगल मिल गया, ऐसे एक एंगल और देख लो, देखो एंगल कौन सा इक्वल होगा, ज्योमेट्री से निकल आएगा आपको। ठीक है ना, ज्योमेट्री से आपका एंगल निकल आएगा, चाहे आप ये वाला एंगल देख लो। मतलब एक तरह से ये मान लो O2 जो है वो बराबर होगा एंगल C के, एंगल C बराबर होगा एंगल B के और F बराबर होगा D। थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, नहीं हो तो नंबर सिमिलर निकले जो एंगल बराबर आएगा। वही लॉजिक लगेगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके बीच भी एंगल तो इक्वल आ जाएगा। तो ये सिमिलर होने से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल। तो आप लिख सकते हैं O2C divided by O2F equal to CB divided by CD. This is your equation number by similarity। ठीक है, अब इन दोनों को यदि आप डिवाइड करते हैं इक्वेशन A डिवाइड बाय इक्वेशन B तो CD क्या होगा तो आपको CA by CD मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ रिक्वायर्ड है। ये सारा काम मैं CA by CB के लिए कर रहा हूं।
ठीक है, एक वैल्यू निकालने के लिए मैं कर, तो डिवाइड कर दीजिए। तो इक्वेशन A डिवाइड बाय इक्वेशन B, यू विल गेट CD कैंसिल, सो इट इज CA by CB इक्वल टू O1C डिवाइडेड बाय O2C into O2F divided by O1G। चेक करिए आएगा। लेट दिस इज इक्वेशन C। तो आप इक्वेशन C से वैल्यू इक्वेशन 3 में डाल दो। इक्वेशन C से वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, तो काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, कट पिट जाएंगी काफी सारी चीजें, है ना। तो जरा करिए, क्या मैं इसको रब कर सकता हूँ? यस सर। तो लोकेट है अपना। तो मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन 3 एंड C, 3 और C को मिलाकर। सो आई हैव ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इक्वल टू CA by CB। CA by CB की वैल्यू है O1C by O2C मल्टीप्लाइड बाय O2F by O1G और मल्टीप्लाइड बाय O2C by O1C। O2C by O2C से O2C कैंसिल, क्लियर? O2C से O2C कैंसिल, O1C से O1C कैंसिल, तो कुल मिला के क्या मिला? O2F by O1G इक्वल टू ओमेगा 1 by ओमेगा 2। एक ये रिजल्ट मिला कि ओमेगा 1 by ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो ओमेगा 2F O2F by O1G के इक्वल है। करेक्ट? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? सिंपल ज्योमेट्री। अब मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। ये तो नोट हो गया या नोट करना है? हो गया। चलिए अब मेरा रिजल्ट आ गया ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इक्वल टू O2F डिवाइडेड बाय O1G। मैं यहाँ रीच कर गया। अब देखो फिगर में देखो O2F ये लाइन है, O1G ये वाली लाइन, इनके रेशियो के बराबर है एंगुलर वेलोसिटी रेशियो, इन दो परपेंडिकुलर्स के रेशियो के बराबर है। करेक्ट? अब देखो, अब एक ट्रायंगल ले रहे हैं पिच पॉइंट के साथ O1 O1GP, we are taking O1GP is similar to O2FP, पिच पॉइंट के साथ ट्रायंगल O1GP and O2FP। बताओ क्या ये सिमिलर है? Yes, they are similar. Again they are similar. तो सिमिलर होने से मैं लिख सकता हूं O1G divided by O1P equal to O2F divided by O2P। I can write? तो अब मुझे ये वाला रेशियो चाहिए O2F by O1G। तो देखो O2F by O1G क्या आ जाएगा? This will be O2P by O1P। Let this is equation number 4। अब इस इक्वेशन 4 या इसको 4 ले लो और इसको 5 ले लो, ये 5 है ना। अब 4 और 5 को मिला के बाय 4 and 5 हमें क्या मिलेगा? ओमेगा 1 by ओमेगा 2 इक्वल टू O2P by O1P। फोर्थ इक्वेशन इज दिस वन। ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट जो आया था O2F अपॉन O1P, O2P O1P का ये देखो O2F डिवाइडेड बाय O1G इक्वल टू O2P ऊपर चला गया, क्रॉस वाली है ना, क्रॉस के थ्रू, और उसको यूज करके फिर ये आ गया। करेक्ट? अब देखो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 की वैल्यू किसकी रेशियो के बराबर आ गई? O1P which circle radius of the first gear, O2P which circle radius of the second, इसके बराबर आ गई। अब देखो इन दोनों का समेशन भी कांस्टेंट है,
O1P और O2P का समेशन कांस्टेंट है बिकॉज O1 is fixed, O2 is fixed. So that's why this ratio is constant. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि if the common normal is passing through the pitch point, then the velocity ratio must be constant. यदि P से पास नहीं होगा इसका मतलब velocity ratio बदलता रहेगा, और बदलता रहेगा इसका मतलब स्मूथ पावर ट्रांसफर. ठीक है. So this is all about the fundamental of theory. ये इतना डिटेल में आता नहीं है, ना प्रूव करने के लिए भी नहीं आएगा एग्जाम में. आ भी सकता है, मैंने पेपर बनाया था. बाकी ऐसे कई प्रूफ के लिए भी पूछते हैं, बट आप आ जाए स्टेटमेंट जरूर याद रखिए. हाँ, वो 2 लाइन का स्टेटमेंट याद रखिए. कॉमन नॉर्मल टू द ट्रूथ प्रोफाइल must always pass through the pitch point.